first YouTube video, and this one is going to be about Amphan cyclone, which hit the eastern parts of India a few days back, leaving behind a trail of devastation, uprooting trees and electrical poles, which also led to the disruption of electrical supply. High ocean temperature are conducive for rapid intensification of cyclone in the North Indian Ocean. When a tropical cyclone hit a place with a high temperature, it increases its speed drastically in a very short time. Global warming is leading to increase in heat content of the ocean around the globe, and this is one of the reasons for the increased number of cyclone activities in our region in pre-monsoon times. According to many studies, a growing proportion of tropical cyclones are developing very quickly, and these changes have been linked to climate change. Bangladesh has been prone to these cyclones from a very long time, but these cyclones are being witnessed around the globe, and scientists say that this climate change effect will make it much more stronger. So if you think this is the worst, then no, worst is yet to come. And in current case, Bay of Bengal was particularly warm, which may had some role in rapid intensification from a depression to a cyclone and then to a super cyclone. ये डेटा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का ही था कि कितने लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है बिकॉज ऑफ साइक्लोन, बट दे आर अदर नेचुरल हैजार्ड एज वेल विच आई हैव नॉट कवर्ड इन दिस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे लॉस नहीं होता या फिर डिस्प्लेसमेंट लॉस ही होता है. देयर इज़ प्रॉपर्टी लॉस, देयर इज़ ह्यूमन लॉस, देयर इज़ वाइल्ड लाइफ लॉस. अगर सिर्फ हम अम्फान साइक्लोन की बात करें तो उसकी वजह से अब तक 83 डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड एंड अराउंड 5000 ट्रीज वर अपरूटेड. अब इन ट्रीज़ में से काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ बहुत पुराने थे, बहुत बड़े थे. अब उनको दोबारा से अगर हम ग्रो करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और तब तक स्टेट का जो ग्रीन कवर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा. सो these kinds of things affect us to another level, and we just only read about the number of deaths which happen, and we also don't even consider them as they were humans which died. We are just like, okay, there were like 300 people, they died, and we just consider them as numbers, which is not good because those life actually matter to some people, and that is not a good thing. To conclude this video, I would like to say that global warming and climate change has been affecting us and will affect us more devastatingly in the future if we are not going to look into the picture and do something about it. I know there are people who believe that हम तो as an individual what can I do, सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन होना चाहिए. और मैं ये नहीं कह रही कि इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दो बिकॉज डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट देन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और अगर अर्थ ही नहीं है, नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को होता है कि अर्थ इज़ डाइंग. अर्थ इज़ नॉट डाइंग, अर्थ इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ विच पीपल आर डाइंग. सो अर्थ को कुछ नहीं होने वाला, अर्थ रहेगी. अगर सारे लोग मर भी जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, मास एक्सटिंक्शन होता है, अर्थ को कुछ नहीं हो रहा, अर्थ रहेगी. हाँ, अर्थ की हालत बहुत ख़राब होगी, बट अर्थ विल बी देयर. It will be people who will be affected, their life are being affected, and उससे ज़्यादा इफेक्ट होगी. As an individual, I just want to say कि हम छोटी चीज़ें कर सकते हैं, like जो हमें पता है कि हमारा will lead to less pollution, और बहुत बेसिक चीज़ें जो हमने थर्ड और फोर्थ क्लास में पढ़ी थी, सॉरी, और जिनको सिर्फ हम पढ़ के भूल गए. और एक जो हम सब ने ही आई गेस बहुत ही वियर्ड चीज़ करी होगी और अभी भी लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, कि सेव ट्रीज़ के पोस्टर बना के क्लास में बनाना और उसको ड्राइंग की तरह पेश कर देना. मतलब उसका कोई सेंस है नहीं है, कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं कि और उसको एज ए सोल्यूशन बताया जाता है कि हाँ, अवेयरनेस स्प्रेड करो, दैट इज़ अ गुड थिंग. बट उस अवेयरनेस का ही क्या, जिससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा. हर एक क्लास में होते हैं 30 बच्चे अराउंड, मेरे स्कूल में उससे ज़्यादा थे. तो अब दैट 30 फिर इतने सारे बच्चे पेपर से पोस्टर बनाते हैं और उससे कुछ होता नहीं है.
So we really need to look forward to towards a step which can actually do something. Planting trees, avoiding plastic bags, ये तो सबसे ईजी है. स्ट्रॉ ना यूज़ करना. आई मीन बच्चों को भी ज़रूरत नहीं होती स्ट्रॉस की. लाइक कुछ बच्चों को जो बहुत छोटे होते हैं, बट एडल्ट्स को स्ट्रॉ की क्या ज़रूरत है. तो बहुत ईजीली अवॉइड करा जा सकता है. और हमेशा अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ ना करके कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग. अवेयरनेस स्प्रेड करना इज़ अ गुड थिंग. एनजीओ ज्वाइन करना इज़ अ गुड थिंग. प्लांटेशन ड्राइव पे ज्वाइन करना इज़ अ गुड थिंग. क्लीनेस ड्राइव ज्वाइन करना इज़ अ गुड थिंग. देयर आर सो मेनी लिटिल गुड थिंग्स विच वी कैन डू. At least I'm not saying that all of us need to live a zero lifestyle, zero waste lifestyle, but we can all try to do our own bits into it so that we have a good life ahead of us, because situation is getting worse day by day. And सबको पता है climate change is a problem, but कोई भी उसको seriously नहीं लेता. I mean, लो सीरियसली, ज़रूरी है सीरियसली लेना. आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं. तो अभी कुछ करना चाहिए ना, लाइक. तो वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. एंड दैट्स इट.